ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਈ ਅਸਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਹੋਪ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। 40 क्वेश्चन ने जो PPSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैट के बेस से तैयार किए गए हैं। 100 मार्क्स होएगा यानी 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के मुताबिक चलांगे। ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ में आ रहे ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ, सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट ट्रिक दसन जा रहे हैं। किसी भी तरीके का एग्जाम है, ठीक है, किसी भी तरीके का एग्जाम है, तुसी कोई बैंकिंग एग्जाम SSC एग्जाम PCS एग्जाम देने जा रहे हो तो इस पर्टिकुलर पेपर के टोटल 120 क्वेश्चन है। तुसी इहदा राउंड करना है, ठीक है, राउंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन तो लैके 20 क्वेश्चन तक। बिफोर दिस मैथड तुसी इदां करना है कि तुहाडे चों किसी भी कैंडीडेट की जो भी मैक्सीमम मैं कह सकता हाँ कि तुहाडा एक फेवरेट सबजैक्ट है। ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੀਕੇ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਲਾਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਲ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਲਾਓ। ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 120 ਹੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਰੋ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕॉफ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਹੈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ 1835 ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ 1835 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। कमेंट बॉक्स से अपने आंसर्स देने नहीं भूलना। और इफ़ यू लाइक दिस सैशन तुहानू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज द की थीम ऑफ इकोनॉमिक नैशनलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन दे विच तुसीं थीम समझ चुके हो, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुहानू पुछया की जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ डायरैक्ट ड्रेन थ्रू द पेमेंट। तो डायरैक्ट थ्रू द पेमेंट किहड़ा नहीं है ये दसना तुसीं ऑप्शन नंबर A B C and D। तो आई थिंक इज द करेक्ट आंसर इज द नन ऑफ अबव। इन्हां चों कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर। आउट ऑफ ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया the 9 have been recognized on the world network by UNESCO। यूनेस्को द्वारा इन्हां नूं नैटवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ देयर आर 4 ऑप्शन। तो द करेक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर।
ठीक है। बाकी है जो यूनेस्को के नैटवर्क च शामिल है, इसलिए आप इन्हों कहांगे करैक्ट है, क्योंकि इत्थे क्वेश्चन आपको एक अपोजिट तरीके नाल पूछा गया सी, सो वी कैन सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन हियर। चौथे क्वेश्चन के तुहानूं की जानकारी दसी गई है, एरिया ऑफ शिकागो इन अमेरिका इज़ द एरिया ऑफ शिकागो इन अमेरिका इज़, अमेरिका दे विच 2019 ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 2 3 A B C D। द करेक्ट आंसर इज द पोलर वॉर्टेक्स। करैक्ट आंसर इज द पोलर वॉर्टेक्स। इस लाइव सैशन में किसी भी आंसर का कोई डीपली एक्सप्लेनेशन नहीं करांगे, बिकॉज कम कोशिश करांगे कि घट तो घट टाइम के विच मैक्सीमम किन्ने क्वेश्चनस असीं रिपीट कर सकते हैं और तुहाडे किन्ने आंसरस सही आउंदे ने। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन हियर, वट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ पंजाब। पंजाब का टोटल फॉरेस्ट कितना कवर किया गया है, तो 4 ऑप्शन ने 4.62%, 6.12%, ऑप्शन नंबर सी 2.24% एंड ऑप्शन नंबर डी 5%। इट्स राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यानी 6.12%। ठीक है। अज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं तुहानूं पूछ रहा कि पंजाब का किहड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिथे सब तो ज़्यादा कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर है। इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर दो। इंटैलीजेंट स्टूडेंट डेफिनेटली चैलेंजिंग, जो बच्चे चैलेंज पसंद है जरूर आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर, ये तो मैक्सीमम स्टूडेंट्स को आना चाहिए, मैक्सीमम स्टूडेंट्स को ये आंसर आना चाहिए। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिटन बाई गुरु नानक देव जी, इज़ ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किहड़े चों किहदा पार्ट है ये। लेकिन तुहानूं ये क्वेश्चन कदे कदार पैरेलल भी पूछा जा सकता है, अपोजिट साइड तो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तुहानूं इदां दे के भी इस ग्रंथ चों लिया गया किहड़े गुरु द्वारा लिखिया गया, तो चीज़ां सारियां तुहानूं बेसिकली बेस ते रिपीट होनियां चाहिए। तो इसका करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जपजी साहिब इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 ते चलते हैं। क्विट इंडिया कंपेन वाज लॉन्च बाई इंडियन नैशनल कांग्रेस आफ्टर द फेलीयर ऑफ, यानी किहड़े किहदे फेलीयर तो बाद कांग्रेस ने शुरू किया सीगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो करैक्ट आंसर की होएगा यस। कमेंट बॉक्स अपने आंसरस करते चलो। थैंक यू सो मच। तुसीं मैक्सीमम टाइम तक जरूर शेयर करो इस लाइव सैशन नूं, ठीक है। मैं तुहानूं विच कम से कम 3-3 4-4 सैकेंड्स देवांगा कि तुहाडे आंसर आउण, राइट। तो इसका करैक्ट आंसर होएगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलीयर तो बाद कांग्रेस ने क्विट इंडिया कंपेन शुरू किया सीगा। हुण तुहानूं पेपर च अगर इदां पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन है ये कदों होया, 1942 का टाइम सीगा। शिमला जो समझौता सी, शिमला कॉन्फ्रेंस की गल आती है जून 1945, ये याद रखियो। और कैबिनेट मिशन की गल है तो 1946, ये भी तुसीं याद रखना है। क्लीयर। चलो अगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां दिता गया तुहानूं, बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है। पेपर के मैक्सीमम टाइम तक तुहानूं इदां दे क्वेश्चन अक्सर बार पूछे जा सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुहानूं दस्सिया गया कि साडे कोल 4 डिफरेंट जो मैटालिक टम्बलर है और पेंटेड किए गए हैं डिफरेंट पेंट्स नाल। अगर इन्हां दे विच कॉफ़ी पाई जाए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम बाद, द कॉफ़ी विल बी फाउंड कोल्डेस्ट इन द टम्बलर पेंटेड। तो 4 ऑप्शन दिते गए हैं तुहानूं, बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है। तो इसका करैक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर सी, रफ ब्लैक इज़ द करैक्ट आंसर होएगा। याद रखियो क्योंकि क्वेश्चन तुहानूं पहला भी पीपीएससी च सेम टू सेम पूछा जा चुका है और मैं तुहानूं उम्मीद करांगा कि इदां दे क्वेश्चनस अगे पूछे जा सकते हैं। तो तुसीं भी इदां दे क्वेश्चनस नूं डायरैक्ट वन लाइनर ही याद रखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ गिवन हियर, ठीक है। स्कैल्डिंग विद द स्टीम इज़ मोर सॉफ्ट दैन स्कैल्डिंग बाई बॉइलिंग वाटर बिकॉज, ठीक है। इसका की कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है कि पानी को उबालने से स्केलिंग की तुलना में भाप के साथ स्केलिंग अधिक गंभीर है। जो कैंडीडेट हिंदी के पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझ सकता है, मैं उस लिए कोशिश करांगा कि हिंदी में दसा, अदरवाइज तुसीं पंजाबी भी क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो तुहाडा की आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 ते चलते हैं। इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक थिंग्स इन द, जो हिल स्टेशन है, आप गल करते हैं कि मैदानी इलाकों नालों हिल स्टेशन के की रीजन है, ठीक है, कुक करने लई,
ठीक है। मैदानी इलाकों की तुलना ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦਾ। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हियर, डिजीज दैट इज कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, तुसी दसना है। टाइफाइड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करैक्ट आंसर की हो सकता है, बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड। कोल्ड तुसी एक फैमिली के अंदर एक मैंबर नूं हो गया तो मैक्सीमम तुसी मन के चलो कि सारिਆਂ ਨੂੰ ही हो जाएगा। ये वायरल डेफिनेटली हो जाता, जिद्दां कि तुसी अजकल देख सकते हो कि मैक्सीमम सानू बीमारियां लगदियां कि वायरल ही होंदियां, ठीक है। मौसमी बीमारियां भी होंदियां लेकिन वायरल ज़्यादातर इन्फेक्शन के आपां नूं लैंदियां। क्वेश्चन नंबर 12 इन्हां नूं मैच करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर मैं तुहानूं ट्रिक दसांगा कि अगर तुसीं कन्फ्यूज भी हो जाओ, ठीक हो, इदां तो हो नहीं सकता कि तुहानूं A B C D 4 ऑप्शन तुहानूं दिते गए हैं और इन्हां दे स्टेटमेंट्स अगे दिते गए हैं। इदां नहीं हो सकता भी किसी भी कैंडीडेट नूं किसी भी बारे ना पता हो। चलो फिर भी आपां कोशिश करते हैं। भगत सिंह, लक्ष्मी सहगल, राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्य सेन। देखो भगत सिंह का रिलेशन कितों का रहा हुआ है, लाहौर कॉन्सीपरेसी केस दे विच, क्लीयर। तो आप कह सकते हैं कि ए का डी हो गया। हुण तुसीं चेक करो कि ए का डी नाल रिलेशन देखो, ना तो ऑप्शन नंबर ए है ना ही ऑप्शन नंबर बी है। तो वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, द ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सी एंड डी असीं 2 ऑप्शन आउट करते हैं। नैक्सट तुहानूं दसना चाहांगा कि तुसीं लक्ष्मी सहगल बारे बहुत कुछ पढ़िया होएगा, जो इन्हां दा रिलेशन रहा है इंडियन नैशनल आर्मी दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, तो बी द ऑप्शन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर डी दे विच है। तो इट मीनस वी कैन से द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन हियर, व्हाट वाज कामागाटा मारू, ठीक है। कामागाटा मारू की है, ये बारे तो सारे स्टूडेंट्स नूं पता होना चाहिए। ये कित्थों तक दा तुसीं याद रखो, कैनेडा के रिलेशन, कैनेडा जो शिप सी उत्थों का ये रिलेशन है। काफ़ी लंबी एक स्टोरी है, मैं चाहना कि तुहानूं अलग सैशन में ये बारे दस्या जाए। ईवन कि प्रीवियस सैशन के तुहानूं ये बारे समझाया गया, बट ठीक है फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप इत्थे एक टेस्ट ला रहे हैं। सो तुसीं करैक्ट आंसर दसना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिता गया कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस कैन द प्रेजिडेंट डिक्लेयर एन एमरजेंसी। प्रेजिडेंट एमरजेंसी लाउंदा है। तो देखो प्रैक्टिकली तौर पर आप गल समझते हैं कि देर आर 3 वे, 3 तरीकों के एमरजेंसी लगती है, लेकिन किहड़े-किहड़े हो सकते हैं। इत्थे तुहानूं वैसे 4 ऑप्शन दिते गए हैं। पहला ऑप्शन दिता है कि एक्सटर्नल जो एग्रेशनस होंदा है बाहरी तौर पर, दूसरा है कि इंटरनल जो डिस्ट्रीब्यूशनस होंदा है, नंबर 3 इज फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, नंबर 4 हो गया फाइनैशियल क्राइसिस। हमेशा ध्यान रखो, अज की सीरीज का दूजा क्वेश्चन मैं तुहानूं पूछ रहा किहड़े आर्टिकल के तहत एमरजेंसी लाई जा सकती है। सब तो ज़्यादा किहड़े स्टेट च एमरजेंसी लगी है, पहला ऑप्शन इज यूपी, दूसरा ऑप्शन इज पंजाब, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो योर आंसर कि तुहानूं किन्ने जणियां नूं पता है, ठीक है। तो इहदा देखो पहली गल है कि एक्सटर्नल एग्रेशन बिल्कुल सही है, इंटरनल कोई मैटर नहीं होंदा। नंबर आप कह सकते हैं 3 फेलियर, जो कोई भी गवर्नमेंट है मशीनरी जो सिस्टम फेल हो जान, ठीक है, नॉट एबल टू रन प्रॉपरली, ठीक है, अपनी गवर्नेंस है वो स्टेट के विच रन नहीं कर सकती। तो नंबर नैक्सट हो गया कि फाइनैशियल क्राइसिस इन्ना ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में एमरजेंसी लाई जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि करैक्ट ऑप्शन की होएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, 3rd एंड 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुरिडिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरीज इज आर करेक्ट, किस बेस पे करेक्ट है, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आई थिंक इट करेक्ट आंसर है। बिल्कुल तुसीं आंसर फाइंड करो, यस, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, यस। चलो ठीक है, मैं तुहानूं सिर्फ 3 सैकेंड्स देवांगा आंसर फाइंड करने लई। इहदा करेक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दिल्ली इज़ ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट्स, ठीक है, दिल्ली दी तुहानूं पता होएगा। और इस तो इलावा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ तो आप इदां नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, यानी आप कह सकते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इट मीनस ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट।
16 ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ क्वेश्चन ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੂ ਅਮੰਗਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੇਮ ਐਜ਼ ਦਾ ਬਾਲਾ ਪੀਰ। ਬਾਲਾ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੇਮ, किस गुरु का नेम है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यस गिव द करैक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु हरकृष्ण जी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गुरु की काशी इज़ अनदर नेम फॉर, ठीक है, किदा नेम है। तो इसका सही आंसर की होएगा, सही आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करैक्ट आंसर। दमदमा साहिब इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 रणजीत सागर जो डैम है हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। पंजाबी ड्रामा का, ठीक है, फादर किसनों मन्निया जाता है। तो 19वें क्वेश्चन का करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र नंदा इज द राइट आंसर। 20th नंबर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ांगा तद ही तुहाडे माइंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड, यस गुड गुड गुड, हाँ कमेंट्स के अंदर बिल्कुल आंसर आ रहा है। करैक्ट करैक्ट इदा ही होना चाहिए कि तुहाडा क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। गुजरात बिल्कुल भी नहीं है, हरियाणा बिल्कुल भी नहीं है, मध्य प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर की आएगा राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस मेड बाय RBI इन गोल्ड मोनेटाइजेशन schemes who are eligible to deposit under the scheme, this is not a demonetization, this is monetization। देखो ऑप्शन नंबर A B C and D and also is given ऑप्शन नंबर E, ठीक है। करेक्ट आंसर दसो, यस, ठीक है। देखो मैं तुहानू करंट अफेयर के सैशन च क्वेश्चन कवर भी करवाया और अच्छे तरीके नाल तुहानू दी जानकारी भी दसी सी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। और एंटिटीज़ ऑन बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल होएगा। इट मीन्स वी कैन से ऑल द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द नेम ऑफ डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च बाय फेसबुक टू एम्पावर वूमेन। फेसबुक द्वारा जो डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि एम्पावर वूमेन क्यों, ठीक है, किहड़ा आ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A B C D या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर B। गोल तुसी याद रखना है, ठीक है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 23 13th कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टीज़ दी UN कन्वेंशन ऑन द कन्वर्जन। आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो माइग्रेटरी स्पेसिस है उन्होंने यह किहड़ी जगह ते हुई है, ठीक है। इंडिया के पर्टिकुलर किहड़ी स्टेट दे विच है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो करैक्ट आंसर की होएगा ऑप्शन नंबर 23rd का की होएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 23rd का ऑप्शन नंबर D गुजरात दे विच होया है, याद रखियो तुसीं। क्लीयर। 24th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डेज वर ऑब्जर्वड ऑन Feb 12th एवरी ईयर। यानी 12 फरवरी को हर साल किहड़ा दिन मनाया जाता है। देर आर 5 ऑप्शन, ठीक है, इत्थे 5 ऑप्शन फिर दिते गए हैं। आई होप तुसी बहुत ही सिंपल तरीके नाल सारे क्वेश्चनस के आंसर दे रहे हो, ठीक है। इदां ही इन्हों जारी रखो। तो इसका करैक्ट आंसर की होएगा वर्ल्ड रेडियो डे। तुसी याद रखना है, बहुत ही सिंपल जिहा क्वेश्चन है, कोई दिनों चो दिन है लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इदां दे क्वेश्चन तुहानूं पूछे जाएंगे जो तुसी तुहाडी उम्मीद तो बाहर होणगे। डेफिनेटली वो क्वेश्चन तुहाडे तो हमेशा पूछे जाते हैं। 25th है कि इंडिया जॉइन विद द विच कंट्री टू लॉन्च इनिशिएटिव टू कॉम्बैट द मैरीन पोल्यूशन। मैरीन पोल्यूशन के संबंधित किहड़े नाल इंडिया जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। विच कंट्री, रशिया, नॉर्वे, वियतनाम, भूटान, पाकिस्तान। तो करैक्ट आंसर हेयर इज करैक्ट आंसर इज नॉर्वे इज द राइट आंसर। ओस्लो याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नॉर्वियन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। 26 ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੋ ਡਿਡਕਟਡ ਐਟ ਏ ਸੋਰਸ ਔਨ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਡਿਪੋजिट इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस रेज फ्रॉम 10,000 टू हाउ मच रुपीज़। तो याद रखना है ये वन लाइनर क्वेश्चन है। 10,000 तो टोटल कितना है 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ है। सैकेंड क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੀ इनकम, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ जो टैक्स है वो एग्जम्प्टेड किया गया है। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਹਾਡੀ इनकम कितनी होनी चाहिए एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜੋ ਮਾਫ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ हैगी 2020 तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू वोट थ्रू द वॉलेट पेपर इन लोक सभा इलैक्शन 2019। देखो बहुत बड़ी मंग हुई सी ਜਦੋਂ कि पिछले इलैक्शनस होए ने किसी स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कि टैंपरिंग की जा रही है, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद भी फिर चोण कमीशन ने की ਕੀਤਾ ਸੀ कि वीवीपीटी मतलब कि तुसी जब भी पोल अपनी वोट पोल करोगे तो तुहानू दा प्रिंट आउट निकल के आएगा, ठीक है, तो उहदे नाल क्रॉस चैकिंग होएगी, तद कोई इदां दी कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई। लेकिन इस क्वेश्चन नू बहुत हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि इदां दा एक पर्टिकुलर जगह आ बट कह सकते हैं तो इसका सही आंसर होएगा निजामाबाद तेलंगाना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ टू इंक्रीज शुगर राइस बोविन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तो इट्स राइट आंसर इज़ द इंडोनेशिया इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एशियन गेम्स इत्थे होए सीगे। जकार्ता जी द कैपिटल सिटी है, तुसी याद रखना है कि रुपया जी द करंसी है। जोको विडाडो इहदे प्रेजिडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एयरफोर्स यूनिट्स ऑफ इंडिया इन विच कंट्री टू शेड्यूल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोप इंडिया 2019। एक्सरसाइज के संबंधी तुहानू क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सही तरीके नाल सारे कंसैप्ट्स नू अच्छे तरीके नाल प्रैक्टिस कर रहे हो। एनीबडी किसी नू भी करंट अफेयर नहीं मिलिया प्लीज़ सानू हजे भी दस सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू इन द ग्रुप्स, ठीक है, डेली तुहानू प्रोवाइड करवाया जाता है। उम्मीद करते हैं। और अगर तुहानू इस तो इलावा भी स्टडी मैटीरियल डाउनलोड करने की जरूरत है, तुसीं वैबसाइट जाओ www.gilsmentor.co.in, ठीक है। इस वैबसाइट पर जाके तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका करैक्ट आंसर की होएगा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी US इज द राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पूर्ण स्वराज कंप्लीट जो सानू आज़ादी चाहिए सी डिक्लेयर टू द गोल ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस इन इट्स सैशन ऑफ किहड़े सैशन दे विच? लखनऊ 1916, लाहौर 1929 या आप त्रिपुरी 1939, लाहौर 1940। तो द करैक्ट आंसर होएगा लाहौर 1929 इज द करैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। याद रखियो तुसीं 1929 जो शुरू होया सीगा। वट इज़ द ग्रीक नेम ऑफ रिवर झेलम? रिवर झेलम का ग्रीक नेम की है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इदां दे क्वेश्चनस तो तुहानूं आने चाहिए है, ठीक है। करैक्ट आंसर इज़ द ए, ऑप्शन नंबर ए होएगा इहदा राइट आंसर। 33 क्वेश्चन नंबर है कि वट इज़ ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू? देखो ये क्वेश्चन इदा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तुसीं सारे याद रखने हैं कि तुहानूं ऑपरेशन ब्लू बारे पूछा जा सकता है, ऑपरेशन वाइट बारे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्रांतियां किहदे संबंधित रही ने, ठीक है, ये संबंधित ग्रीन क्रांति रही है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे भी तुहानूं पूछा जा सकता है। तो इदां दे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर की होएगा? गिव योर करैक्ट आंसर। यस, वट इज ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू? तो ये सीगा मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुसीं याद रखियो इस क्वेश्चन नूं, पेपर में तुहानूं इदां ही पूछे जाएंगे। परमानेंट रेवेन्यू सैटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाई? किहदे द्वारा किया गया सीगा? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, हेस्टिंग्स द्वारा या वेलेजली द्वारा या कॉर्नवालिस? तो ये करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तुसीं याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इदां दे क्वेश्चन तुहानूं डेफिनेटली पेपर 'च पूछे जा सकते हैं। और इदां दे क्वेश्चन दे विच असीं मैक्सीमम गलती करांगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक स्तर दे ने। और याद रखियो, क्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 35, हू स्पोक? किने दस्सिया सीगा कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स एंड इंडिया अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम?
बहुत ही सिंपल ਜਿਹਾ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। तो ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ पंडित जवाहर लाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन 36 यस, क्वेश्चन पढ़ते सार ही तुहाडा आंसर आना जाना चाहिए है, ठीक है। फॉर्मर प्रिंसली की गल हो रही है। स्टेट निहान इज़ पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ, पंजाब का है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ पुष्कर फेयर हेल्ड, ठीक है। पुष्कर जो मेला है कित्थे लगता है, कित्थे आयोजित होता है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम हीयर मैं तुहानूं वैसे तुहानूं दस दिना है कि चारे ऑप्शन ये राजस्थान के ने, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स ने, बड़ी फेमस पैलेसिस ने ये, ठीक है, फेमस जगह ने, ठीक है। इसका करैक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन की है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली है, ठीक है, उन्होंने अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मैट ऑन किदों रखा गया सीगा, A, B, C and D। देर आर 4 ऑप्शन, करैक्ट आंसर दसो गाइज। तो यदा आंसर सही की होएगा 9 दिसंबर 1946 इज द करैक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूट असैंबली फॉर द, हाँ जी, डोमिनियन of India resembled on 31st October 1947 its reduced membership was, किन्ने मैंबरशिप रिड्यूस किए गए थे। वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा याद रखो, बहुत बार पीपीएससी क्वेश्चन और डिफरेंट एग्जाम पूछा गया है। तो 299 शुरू के किन्ने सीगे, 299 रिड्यूस किए गए थे, ठीक है। तो करैक्ट आंसर होएगा। लास्ट क्वेश्चन, चीफ इलैक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लो, ऑप्शन नंबर बी रीड करो, ऑप्शन नंबर सी रीड करो और ऑप्शन नंबर डी रीड करो, दैन यू गिव द आंसर, ठीक है। आई वॉन्ट, मैं चाहना कि तुसी कमेंट बॉक्स का सही आंसर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है तुहाडे लिए ये गाइस, ठीक है। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करदा कि तुहाडा स्कोर बहुत अच्छा होएगा और पेपर च भी तुसी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, ठीक है। हुण तुसी की करना है, सैशन ऑफ होने तो बाद अपना स्कोर जरूर लिखियो ताकि अदर स्टूडेंट को एक मोटिवेशन ऊर्जा मिलती है कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा सीगा। और ये सैशन तुहानूं किदां लग्या ये बारे जरूर दस्सियो। ध्यान रखो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड लक गाइस।